Welcome back to this lecture of Mechanics of Solid 1. We were discussing the deflection of the beam, and in the initial two parts, in the first part we discussed the basic concept of the beams, and we also discussed what exactly the curvature is, what exactly the deflection is, what exactly the beams are. And then in the second part, we discussed the curvature and we derived the differential equation of the elastic curve, right? So in today's lecture, inshallah, we will be continuing our discussion on the deflections of beam, and we will be looking for the solution of that differential equation by double integration. And so our aim is, it's very important that the thing that should be clear in your mind is that we are looking for the deflection and the curvature, and in an attempt to find the solution for the curvature and the deflection of any beam of the statically determinate beam. We are not discussing the statically indeterminate beam. So in looking for the solution of the statically determinate beam for finding this deflection and the curvature, we developed the differential equation of the elastic curve. And in today's lecture, inshallah, we'll be looking for a method in finding out the curvature as well as the deflection of that statically determinate beam. So as you already know that we have discussed the content that we'll be discussing in the Mechanics of Solid 1 course, Mechanics of Solid 1 lectures, that we will be covering the HEC's approved curriculum. In that HEC approved curriculum, in the deflection of beam, so we have to discuss only the double integration method. So there are so many methods of finding the deflections of the beam of statically determinate beam and the statically indeterminate beam. For finding the solution, you can, inshallah, we'll try to cover the structure analysis 1 and 2 courses as well in our videos ahead. So we'll look for the solution of those beam as well. But in current lecture, in current topic is the deflection of beam by the double integration method only. So just it's a recap of the last lecture. So I'm just reproduce this last slide of that lecture in which we developed the differential equation of the elastic curve. And we said that this is the differential equation of the elastic curve, that m upon EI is equal to d square v upon dx square. So, and we call it that equation number 3, right? So this is the differential equation of the elastic curve. The product EI, as we have discussed already, I think we discussed very much in detail that EI is the flexural rigidity of the beam, and then we compare the flexural rigidity with the flexural stiffness, and then we also looked at the different rigidity and stiffness formula for the axial rigidity and the axial bending rigidity, that we are calling it to be flexural rigidity. And then we also looked for the formula for the torsional rigidity, right? So we have discussed this rigidity as well in detail, and we know and we assume in that lecture that the beam we are considering is the prismatic beam. And while saying the beam is prismatic, we are saying that the beam is of constant cross section. The moment of inertia, constant cross section means the moment of inertia would remain constant. There would be no taper. Okay. So we are not considering the tapered beam, we are not considering the curved beam, we are considering the beam to be a prismatic beam, and that's why we are assuming that E and I both are constant. The constant E means that we are assuming the beam to be homogeneous. We are not considering the non-homogeneous. We are assuming that the beam is made up of a single material, and that material is homogeneous as well. These terminologies I'm planning to include to record small lectures, short lectures on these concept as well. What exactly the homogeneity is, what exactly the isotropic is, because the concept of isotropy is also very important, because in some time you would see that this terminology is also used. So there are certain short terminologies, but they are very fundamental terminologies, and I'm thinking as soon as I get enough time, then inshallah I will try to record lectures so that these concept of terminologies that would be used in civil engineering, I would like to record lectures to make it clear for you people as well. Okay. So right now, as we are discussing the differential equation of the elastic curve, this equation number 3 is the differential equation of the elastic curve. Moment is the moment equation that you have already learned while discussing the flexure formula, that how can we calculate the moment.
and then I think while looking for the solution of the shearing force and bending moment diagram, and particularly the equation method, I think you learned how to develop the moment equation, how to develop the shear equation, right? So this M is the moment equation that would be derived from your previous knowledge, inshallah, when you will see that when we'll be solving few problems based on this double integration method, then you will also, I think all of those things would be repeated here, and I think those things would become easier for you again, inshallah. And EI, as we have discussed right now, is the flexural rigidity, and E is the modulus of elasticity, and I is the moment of inertia. And the term which is on the right hand side of this equation is the second derivative, and we discussed that V is in fact the deflection that we are looking for. ठीक है, and as we are comparing it with ये जो function है जिसके साथ we are comparing, it's dx मीन इस पे लास्ट उसमें मैंने आपके साथ उसमें डिस्कस किया था कि हम इसको v जब फंक्शन ऑफ x कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स कि भाई v इज़ वेरिंग, कि v इज़ वेरिंग की मुराद ये कि डिफ्लेक्शन इज़ वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एंड x इज़ द लेंथ, ठीक है. सो L was the span length of the beam, and x can be anywhere along the beam. If you want to calculate the deflection at on one feet, if you are considering the beam to be in feet, then x can be 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, 5 feet. So this second differential of deflection with respect to x, ठीक है, this is the second differential of deflection of v, mean it's the second differential of v of deflection with respect to the x, ठीक है. And that this equation in fact is the differential equation of the elastic curve, and from this equation we can find out the deflection as well as the curvature, ठीक है. And then so you can write this equation in this form as well, in double dot form, and you can say वो जो डबल सबस्क्रिप्ट लगाते हैं वो उसको भी उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, प्राइम जो डबल प्राइम आ जाता है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या जिस तरह जो ऊपर वाली फॉर्म में लिखी हुई है स्केयर की फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो दोज हु आर गुड एट मैथमेटिक्स दे नो के डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल एज कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व, where dot denote the differentiation with respect to x, that is this is the first derivative and this is the second derivative and so on, ठीक है. And then फिर हमने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी हमारे पास, हमने ये कहा कि अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं then we can find out the shear, and if we take the fourth derivative of the deflection, then we can find out the load. जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी ना, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में हम जाते हैं तो कहानी हमारी लोड से शुरू हुई थी. बीम हमने बनाई एंड बीम के ऊपर जैसे ही भी अप्लाइड लोड, बीम के अंदर वो डिफ्लेक्ट हुई, बीम के अंदर इलास्टिक कर्व प्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर कर्वेचर आया, और फिर वो डिफ्लेक्शन से एक स्टेप पीछे जाते हैं तो कर्वेचर से एक स्टेप हम पीछे जाएंगे तो मोमेंट से एक स्टेप पीछे जाते हैं तो शेयर, एंड देन शेयर से फिर लोड. सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस गोज. तो इसी तरीके से अगर आप लोड को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मिल जाता है शेयर को इंटीग्रेट करते हैं, मोमेंट को इंटीग्रेट करते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो एक दूसरे के साथ रिवर्स पे चलता है. इंटीग्रेशन को आप करते हुए चले जा रहे हैं, इलास्टिक कर्व की इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास इस तरीके से डिफ्लेक्शन और कर्वेचर मिल जाएगा, और दूसरे प्रोसेस से आप चलेंगे तो फिर आपको फिर लोड तक भी आपकी कहानी जा सकती है. तो बहरहाल वो तो सारी चीज़ें हैं जिस पर मैंने एजम्पशन की थी कि यू ऑलरेडी नो के the flexure formula and the derivation of the flexure formula and all the concept behind the shear force and the bending moment diagram. So I'm not going into detail of that thing, ठीक है. So just a recap of the last lecture so that आप यहाँ से आगे की तरफ जो हमने लेके चलना है, आप इस पोजीशन में हो कि वो आगे वाली चीज़ों को आप फॉलो कर सकें, ठीक है. So we are now ready to solve the differential equation of the deflection curve या elastic curve या deflection curve and obtain the deflections of the beam, ठीक है. तो अब I'm very much sure with all my efforts that I put in the last 2 lectures, I'm very much sure that you people have gone through all those things and you people have understood so far, and you are in a position to go ahead along with me while finding out the elastic deflection and the curvature of the beam, ठीक है. So this first equation we will use is the bending moment equation, ठीक है. ये जो bending moment की इक्वेशन थी जिसके अंदर हमने m के साथ किया था, क्योंकि अगर आपने डेरिवेटिव की जो लास्ट स्लाइड में इक्वेशन देखी थी तो हमने वहाँ एक शेयर की भी इक्वेशन बना के दिखाई थी आपको, और आपको एक लोड की भी इक्वेशन दिखाई थी. तो हम लोड से लेकर के नहीं चल रहे, क्योंकि मोमेंट तक की हम कैलकुलेशन बआसानी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज.
सो इसलिए वो बाकी दो की इक्वेशन को हम नहीं कर रहे, वरना अगर आप लोड की इक्वेशन को भी लेकर के चलें तो फिर वहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस चलते हुए चले जाएं तो फिर तब भी आप डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। लोड का एक इंटीग्रेशन करते हैं तो यू विल फाइंड आउट द शेयर का एक और इंटीग्रेट करेंगे, विल फाइंड आउट द मोमेंट का एक, जिस तरह यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये कि मोमेंट का एक इंटीग्रेट करेंगे तो विल फाइंड आउट द कर्वेचर, एंड देन इफ़ यू इंटीग्रेट इट द सेकंड टाइम देन यू विल फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम अपना जो स्टडी करेंगे वो इंशाल्लाह ये मोमेंट इक्वेशन से लेकर के चलेंगे। सो सिंस दिस इक्वेशन इज़ ऑफ सेकंड ऑर्डर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर डिफरेंशियल का ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन चाहिए होगी। द फर्स्ट इंटीग्रेशन प्रोड्यूस द स्लोप dv अपॉन dx एंड द सेकंड प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन v। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है कि कैसी इक्वेशन ये जो है वो सेकंड ऑर्डर होती है, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होगी, या फिर वो जो है कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस होगी, कौन सी इक्वेशन लीनियर होगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत बड़ी कहानी है, वो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा अलमिया ये है कि जो हम इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो अप्लाइड लेवल की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, और वो फिर हम एक प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो लेट्स सी इफ आई फाइंड टाइम, सो आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ लेक्चर ऑन दैट एज वेल फॉर यू पीपल के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है हमारे इंजीनियरिंग के, उसमें कि कहाँ कहाँ वो हमारी इंजीनियरिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है और किस तरीके से वो डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं, ताकि जो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है वो बेसिकली आप मैथमेटिक्स क्यों आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि हमारे जो इंजीनियरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर उसकी यूटिलाइजेशंस हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह लेट्स सी इफ आई फाइंड टाइम, सो आई विल ट्राई टू, जो कि ज़रा मैथ मेरा मेजर एरिया नहीं है, तो जिस लेवल की हमें एप्लीकेशन इस इंजीनियरिंग में चाहिए होगी तो मैं आई ट्राई कि मैं उस पर भी कोई आपके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोई काम कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई कि हमने मोमेंट इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं, और वी विल फाइंड आउट, वी विल इंटीग्रेट इट ट्वाइस and we'll see कि while integrating it once we'll get the curvature, and integrating it twice we will get the deflection. ठीक है, and while doing these integration you will see that we'll find out certain constant as well, and then we'll see how those constant can be calculated from our non-knowledge of the beam. ठीक है, इफ़ ई आई इज कॉन्स्टेंट एंड एम इज़ अ नॉन फंक्शन ऑफ एस, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि एम इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स से मुराद ये होती है कि एम वेरीज अलॉन्ग द एक्स, जैसे जैसे आप एक्स को वेरी करते हैं तो एम भी वेरी करती है। ठीक है, तो एम इज़ अ नॉन फंक्शन ऑफ एक्स से मुराद ये होती है कि एम का जो डिपेंडेंसी है, m is a variable and this variable is dependent upon the x, this variable is also dependent upon q as well, जो ज़्यादा लोड से आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन चूँकि हमने डिफ्लेक्शन और कर्व को लेने जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ हमने फंक्शन ऑफ x लेके चलेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमने लास्ट स्लाइड्स लेकर आए थे, वो ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन की जो इंटीग्रेशन होगी वो दैट विल यील्ड दिस थिंग। ठीक है, सो वी आर जस्ट पुटिंग द इंटीग्रेशन साइन ईयर, बिकॉज ई आई इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इससे बाहर निकल आता है इंटीग्रेशन से जो आपका कंसेप्ट है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मोमेंट है, मोमेंट का इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन विल गेट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड वी आर कॉलिंग दिस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू बी C1। ठीक है, तो फिर हम इसको, और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म इज़ वेल। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आई है ये मेरा ख्याल है कि डबल इंटीग्रेट करने के बाद आनी चाहिए थी। अच्छा नहीं, ये जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, होता ये है कि ये जो इसका एक डिफरेंशियल है वो इसके इंटीग्रेशन को ख़त्म करेगा, तो यू विल गेट dv अपॉन dx। ठीक है, जब इंटीग्रेशन को आप अप्लाई कर देंगे ऑन द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन मीन भी ये है कि चूँकि आपके डबल डेरिवेटिव थे तो आपका फिर एक डेरिवेटिव रह जाएगा। तो इसको अगर आप जिसकी इंटीग्रेशन अच्छी है तो वो उसको समझ गया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये इस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है, ये वाली इक्वेशन को मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ई आई इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स इन टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एंड देन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम देख के चले, राइट हैंड साइड तो आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये जो डी एक्स है वो उस डी एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और ये जो डेरिवेटिव है ये इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है। एज अ रिजल्ट फिर आपको जो चीज़ मिलती है वो ये मिल जाती है कि ई आई इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। और जब आप इसको एक और दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, तो वहाँ मैं आपको ये फिर दिखाता हूँ कि वहाँ फिर ये क्या होगा। ठीक है, तो ए सेकेंड इंटीग्रेशन गिव्स दिस थिंग। ठीक है, उसी इक्वेशन को जब आपने सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं इस जगह के ऊपर
कि यहाँ हमने अब डबल इंटीग्रेशन लगा दी है, और चूँकि C1 था वहाँ, तो C1 के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो C1x हो जाएगा, एंड देन विल गेट अनदर कांस्टेंट इंटीग्रेशन बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग इट ट्वाइस इंटीग्रेशन की वजह से विल गेट अनदर कांस्टेंट इंटीग्रेशन, एंड वी आर कॉलिंग दिस कांस्टेंट इंटीग्रेशन एज C2। तो अब यहाँ जो इसकी ये जो चीज़ है, ये d इस d के साथ कट जाएगा और x जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको चीज़ मिल जाएगी वो आपको ये नेक्स्ट स्टेप में यही मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, तो वो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ फिर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ लिख के कि ये क्या चीज़ बनेगी। तो यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन आप खोलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको ये EIV मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को अगर हम यहाँ लेके आ जाएँ तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रल d/dx इंटू v इंटू dx, ठीक है, इज इक्वल टू ऑल दोज थिंग। So dx will cancel out, this derivative will cancel out this thing, and you will get v। ठीक है, and then the EI ऑलरेडी के इंटीग्रेशन के बाहर है, तो फिर यहाँ से आप EI को भी लगा देते हैं, तो ये आपके पास ये आ गया। तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये आपके पास क्या है, ये डिफ्लेक्शन है। ठीक है, और dv/dx इज इन फैक्ट दी कर्वेचर। सो यहाँ So coming back to this, where C1 and C2 are constant of integration and that need to be determined, and we'll see how we can determine that. So because equation 4 gives the deflection V as a function of x, ठीक है, this deflection V is a function of x, it is called the equation of the elastic curve. तो वो तो that was the differential equation। ये इसको फिर इसका है कि इसके ज़रिए से आप इलास्टिक कर्व की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दीज कांस्टेंट आर इवेल्युएटेड फ्रॉम नॉन कंडीशंस। अब जो कंडीशंस हैं बीम की, वो हमें कुछ कंडीशंस पहले से पता होती हैं। जो भी आपके पास बीम का क्वेश्चन आएगा वो अभी आप देखेंगे आगे वाली स्लाइड में कि कौन सी कंडीशन नॉन होती है और उस कंडीशन से किस तरीके से हमें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड फ्रॉम दैट यूजफुल इन्फॉर्मेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट दी कर्वेचर एज वेल एज हाउ कैन कैलकुलेट द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन C1 एंड C2। ठीक है, सो दैट कंडीशंस जो हैं वो फॉल इनटू 3 कैटेगरीज में है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो बीम की बाउंड्रीज हैं, जो कि आप कह लें कि सपोर्ट हैं, सपोर्ट A है, सपोर्ट B है, या इवन एक ही सपोर्ट है अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है। तो जो बाउंड्रीज हैं बीम की, उसके ज़रिए से भी हमें कुछ नॉन नॉलेज मिलता है कि वहाँ नॉन वैल्यूज़ ऑफ स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन होती हैं, and from those non values of slope and deflection we can find out the C1 and C2. So this is not only the one thing, इससे और भी conditions हैं जिसके ज़रिए से हमें useful information मिल सकती है कि let's see कि वो कौन सी useful information हो सकती हैं। So number 2 is the continuity condition। कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ बीम में कंटिन्यूटी है, जहाँ बीम का एक सेगमेंट लेफ्ट सेगमेंट जो है वो राइट सेगमेंट के इक्वलेंट है। ठीक है, जो जिस पॉइंट के ऊपर वो चेंज आ रही है उस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कुछ चीज़ें बराबर हों, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बराबर हो सकता है कुछ चीज़ें ना बराबर हो। तो विल सी के वेयर एग्जैक्टली इज कंटिन्यूटी इज, एंड देन वी विल सी के फ्रॉम दैट कंटिन्यूटी इफ वी एस्टैब्लिश के यस देयर इज कंटिन्यूटी, देन वी विल सी के फ्रॉम दैट कंटिन्यूटी हाउ कैन वी फाइंड आउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 एंड C2। सो फर्स्ट थिंग इज द बाउंड्री कंडीशन, नंबर 2 इज द कंटिन्यूटी कंडीशन, एंड द थर्ड वन इज द सिमेट्री कंडीशन। अगर बीम के अंदर सिमेट्री पाई जाती है, एक ही तरह के लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सिमेट्री है। या अगर आप ये देख रहे हैं कि 2 लोड लगे हुए हैं और दोनों लोड एक तरह के डिस्टेंसेस के ऊपर लगे हुए हैं, तो उससे भी सिमेट्री आ रही है। तो यहाँ से भी हमें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन है इसको अभी हम आगे डिस्कस भी कर रहे हैं, और जब हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे देन यू विल सी के हाउ कैन वी यूटिलाइज, हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं वो बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि वहाँ हमने 3 कंडीशन आपको बता दी, बाउंड्री कंडीशन, कंटिन्यूटी कंडीशन, और तीसरी क्या थी, ये सिमेट्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री, कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री कंडीशन। तो वन बाय वन इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दिस कंडीशन सो दैट द कंसेप्ट ऑफ दिस कंडीशन बिकम क्लियर टू यू। सो बाउंड्री कंडीशंस परटेन्स टू द डिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन से करती है एंड स्लोप से करती है एट द सपोर्ट ऑफ द बीम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट ऑफ द बीम है ये आपकी बाउंड्रीज हैं, बीम की लिमिट्स हैं कि बीम इसके बाद ख़त्म हो रही है, तो यहाँ इस बाउंड्री से आपको बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप ज़ाहिर है ये मैंने वहाँ भी कहा कि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लेट्स सी कि क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो अगर हमें एक एज अ सिंपल सपोर्ट लें आइदर पिन और अ रोलर, तो हमें पिन और रोलर की दोनों करेक्टरिस्टिक का पता है कि क्या होती हैं। तो यहाँ क्या होगी, द डिफ्लेक्शन इज़ 0। अगर आप ये चीज़ को देखते हैं तो ये आपको एक पिन सपोर्ट मिलती है, ये आपको रोलर सपोर्ट मिलती है,
और ये इसका नॉन इलास्टिक कर्व है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम है, डिफ्लेक्शन इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग if you move along to the support A in the same way from the maximum deflection at the midpoint or whatever that deflection is, if you move toward the support B, you can observe that the deflection is continuously reducing. ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बाउंड्री कंडीशन मिल रही है कि डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट ए इज जीरो एंड द डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट बी इज जीरो. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सपोर्ट्स कि भाई ये जो हमारी सपोर्ट्स थी उसके ऊपर जो डिफॉर्मेशन आ रही थी वो ज़ीरो थी. ये इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. अगर आप फिर इसके मुकाबले में एक वो लगा देते हैं, ये फिक्स एंड सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है, एट अ फिक्स सपोर्ट बोथ द डिफ्लेक्शन एट द स्लोप्स आर जीरो. तो अगर आप फिक्स सपोर्ट में अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम नज़र आ रही है, ठीक है. और जैसे जैसे आप सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ जो है यहाँ आपको कर्वेचर नज़र आ रहा है कि कर्वेचर इज द मैक्सिमम. बट अगर यहाँ आप स्लोप देखते हैं तो स्लोप इज़ जीरो एट पॉइंट ए. तो स्लोप पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमने डिस्कशन की थी, क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किए थे कि भाई कर्वेचर जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा. तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो कर्वेचर जो आपका इलास्टिक कर्व है उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट गिव्स यू दी कर्वेचर. तो अगर आप इस पर्टिकुलर बीम का ये जो हमारे पास फिक्स एंड बीम है, यहाँ अगर आप देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो यहाँ अगर आप ये लाइन है, दिस इज द टेंजेंट, ये जो ब्लैक लाइन चल रही है ये टेंजेंट. तो इसका अगर आप स्लोप देखते हैं तो दिस स्लोप इज़ जीरो. ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ एक टेंजेंट ले लेते हैं ये, ठीक है, इसका अगर आप स्लोप देखते हैं तो दिस इज़ द स्लोप. तो we do have a slope here, ठीक है. But as we move along this curvature and move towards this support, then we would see this curvature is gradually reducing and as well as the deflection is gradually reducing, and as we reach to the support A of a fixed end beam, we will see that the deflection is zero there and we also observe that the curvature is zero here. On the contrary अगर आपने ये चीज़ देखी है हमारी जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कर स्लोप डिफ्लेक्शन इज़ जीरो बट द कर्वेचर इज़ नॉट जीरो हेयर. ये अगर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक सर्टन एंगल बना रहा है, ये ठीक है, ये एक थीटा बना रहा है. सो दैट इज़ द कर्वेचर दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है. जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम देखेंगे तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक एंगल बना रहा है. तो इफ़ वी कॉल इट थीटा ए, थीटा बी एंड वी कॉल इट थीटा बी, थीटा ए. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट यस स्लोप इज़ नॉट जीरो एट दिस सपोर्ट बट द डिफ्लेक्शन इज़ जीरो. ज़्यादा स्लोप जीरो नहीं है, मतलब स्लोप की सर्टन वैल्यू एंड दैट वैल्यू स्टिल अननोन टू अस. सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस. अनदर इन्फॉर्मेशन जो ये आपके यहाँ से आपको मिल सकती है, बाज़ औक़ात वो हम लेते हैं. अब आप देखेंगे जब हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि यहाँ जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपकी आती है तो नॉर्मली उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जगह के ऊपर आपका जो अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट भी जो होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड दैट शोज़ कि भाई जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो स्लोप इज़ जीरो देयर, ठीक है. सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशन. ये कुछ सिमेट्री कंडीशन के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी तो वो फिर हम सिमेट्री के अंदर भी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ जो बात समझने की थी वो मैंने आपको ये समझा दी कि यहाँ किस तरीके से हम बाउंड्री कंडीशन और से एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो या किस तरीके से एक फिक्स एंड बीम की बाउंड्री कंडीशन से हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड देन इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि आपको पता नहीं कि हमारा टारगेट क्या है. हमारा टारगेट इस बाउंड्री कंडीशन से ये है कि वी वांट टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन C1 एंड C2, ठीक है. एंड C1 एंड C2 को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बिकॉज जो हमने डिफ्लेक्शन की इक्वेशन निकाली उसके अंदर ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए थे और वो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली थी, वो हमने डबल इंटीग्रेट किया था हमने इलास्टिक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन को. ये वो उसका सीक्वेंस है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी. बाउंड्री कंडीशन में डिस्कस की. अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी कंडीशंस. सो कंटिन्यूटी कंडीशंस अकर एट पॉइंट्स वेयर द रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन मीट्स. तो अब देखते हैं कि ये बात आपको अगर पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, इसकी अगर आप ये एग्जांपल देखें कि ये मैं पॉइंटर ले लूँ कि सच एज एट पॉइंट सी, अगर आप इस पॉइंट सी के ऊपर देखें, ठीक है, इन द बीम ऑफ दिस फिगर देयरफॉर द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी एज डिटरमिन्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द बीम मस्ट बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ राइट हैंड पार्ट ऑफ द बीम. तो अगर आप इस जगह के ऊपर डिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी से हमें इसका पता चल रहा है. यहाँ जो ये डिफ्लेक्शन आ रही है, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस डिफ्लेक्शन जो कि रेड में आ रही है, अगर आप सेगमेंट ले रहे हैं ये वाला AC, इस सेगमेंट को मैं यहाँ से आपके लिए निकाल देता हूँ, ये AC, ये सेगमेंट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. सो फॉर द सेगमेंट AC डिफ्लेक्शन एट C,
ठीक है, फॉर द सेगमेंट ए सी, ये जो हमने लिखा है फॉर सेगमेंट ए सी दिस डिफ्लेक्शन एट ए सी वुड बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट सी बी। ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए सी सेगमेंट में जो डिफ्लेक्शन आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम है जो कि डिफ्लेक्शन आ रही है आपकी इस पॉइंट पे। ज़ाहिर है ये जो डिफ्लेक्शन है वो इस रीजन और इस रीजन के लिए सेम है। इसी तरीके से अगर आप ये डिफ्लेक्शन यहाँ ले लेते हैं इस जगह के ऊपर जो कि अननोन है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस रीजन के लिए और इस रीजन के लिए सेम होगी। तो ये एक सिमेट्री, ये कंटिन्यूटी कंडीशन कहलाती है, क्योंकि बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो जहाँ भी चेंज ऑफ लोडिंग होती है तो वहाँ इस किस्म की यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि वो सेम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट द कंटिन्यूटी कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये है कि सिमिलरली द स्लोप, वहाँ तो हमने कहा कि डिफ्लेक्शन सेम है, तो क्या फिर सवाल ही पैदा होता है क्या स्लोप भी सेम है ये नहीं। तो सिमिलरली स्लोप फाउंड फॉर ईच पार्ट ऑफ द बीम मस्ट आल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो एट पॉइंट सी के ऊपर यहाँ जो आपको स्लोप मिल रहा है इस जगह के ऊपर अगर आप यहाँ एक वो ले लेते हैं, ये टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रा किया, ज़ाहिर मुझसे अच्छा नहीं ड्रा होगा, ये टेंजेंट आपने ड्रा किया। अब इसका जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ठीक है, या अगर आप ये एंगल ले लें तो जो कि आपके पास, अगर मैं इस चीज़ को बड़ा करके दिखा दूँ इस जगह के ऊपर तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। और ये जो इलास्टिक कर्व जा रहा था वो ये जा रहा था, ठीक है। तो ये जो था दिस इज़ दी कर्वेचर फॉर द पार्ट, अगर यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन लगाएं तो दिस इज़ द कर्वेचर फॉर द पार्ट सी बी, इसको अगर मैं कह लूँ थीटा सी बी है, ठीक है, एंड दिस इज़ द कर्वेचर, ठीक है, फॉर, इसको आप कह लेंगे दिस इज़ थीटा ए सी। तो अगर आप देखते हैं जो, अगर आपने हमने जो इसको पढ़ा था इसको हम कहते हैं रासी ज़ाविये, मेरे ख्याल में मुतबादला ज़ाविये कहते हैं। मुतबादला ज़ाविये जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मुतबादला और मुतनाज़रा ज़ाविया, अल्टरनेट एंगल्स जो आई थिंक अंग्रेज़ी में इसको कहलाते हैं। तो जो ज़ाविये होते हैं दीज एंगल्स आर अपोजिट टू, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो रासी ज़ाविये होते हैं वो भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ कि ये और जो ये एंगल है ये बराबर होंगे और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो ये वो ज्योमेट्री की चीज़ें हैं जो कि पुराने कंसेप्ट हैं और अचानक जहन में क्लिक कर गया था। राइट नाउ जो बात समझने की वो ये समझाने की थी वो ये थी कि अगर इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ सी बी कर्वेचर एंड स्लोप ऑफ सी ए वुड बी सेम। तो दिस इज व्हाट द कंटिन्यूटी कंडीशन। यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन जो है वो ए सी रीजन की और सी बी रीजन की भी सेम है और इसी तरीके से स्लोप जो है वो भी इनके सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास कंटिन्यूटी कंडीशन होती है। इस तरीके से फिर है सिमेट्री कंडीशन। तो सिमेट्री कंडीशन में आल्सो भी अवेलेबल, हो सकता है कि इन तीनों चीज़ ये कंडीशन से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही हो और ये भी हो सकता है कि आपको कोई एक कंडीशन मिल रही हो या कोई दो कंडीशन मिल रही हो, ठीक है। तो ये फिर पॉइंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो सिचुएशन आपके पास आती है उस सिचुएशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो यहाँ अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और आपके अच्छे कंसेप्ट बन रहे हैं एंड देन फिर आप ये देख सकते हैं कि जिस किस्म के भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के वो आप देख करके आप अपने ये कंडीशंस लगा करके आप यू कैन गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज़ यहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर असेसमेंट आपकी होती है एग्जाम में, आप पर कुछ तरह का सवाल आता है कि जहाँ आपको ट्रिकी सिचुएशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई आप कंडीशन देख के बताइए कि इसमें क्या है, तो conceptual understanding of these conditions are very important, ठीक है। So let's move to the symmetry condition. For instance, if a simple beam supports a uniform load, symmetry है, अगर वो कहता है uniform load लगा हुआ है throughout its length, we know in advance that the slope of the deflection curve at the midpoint must be 0. तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर लगा हुआ है और फिर हम ये हमें जो पिछली हमारी नॉलेज है उसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर ये सेंटर के ऊपर जो होगा वो डिफ्लेक्शन जो होगी वो ज़ीरो, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी और स्लोप जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। सो दिस इज़ द यूजफुल इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से अगर आपके पास एक आपने वो सिंपली सपोर्टेड बीम ली हुई है और सेंटर के ऊपर आपने पॉइंट लोड लगाया हुआ है, इवन इन दैट केस भी है। यहाँ इसके हम इस फिगर देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा ये फिगर नहीं है तो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो पेन ले लेते हैं एंड लेट्स टेक अ वाइट स्क्रीन so that it would be easier for us to draw, ठीक है। सो पहला जो हमने एग्जांपल आपको मैंने कोट की थी वो ये की थी कि वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम लाइक दिस, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड मीन वी हैव अ रोलर हेयर and we'll have a hinge here and we'll apply a uniformly distributed load over this,
ठीक है। एंड बिकॉज वी नो कि दिस लोड इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो फिर जो इसका सेंटर लाइन होगी, ये वाला सेंटर लाइन, इसके फिर आपने मोमेंट इक्वेशन ड्रा करना भी सीखी होंगी, ठीक है। जो सेंटर लाइन का है इसके ऊपर आपके पास ये डिफ्लेक्शन जो होगी वो मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। और जहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है वहाँ ये जो स्लोप होता है वो स्लोप फिर ज़ीरो आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम ली है, ठीक है, लेट्स अभी मैं इसको पॉइंट की सूरत में ड्रा कर देता हूँ, और ये सेंटर के ऊपर इफ़ यू अप्लाइड अ लोड एट द सेंटर, दिस लोड P, एंड यू नो कि भाई दिस डिस्टेंस इज़ L/2, एंड यू नो कि भाई दिस डिस्टेंस इज L/2, यू विल हैव टू, ये आपको देखना पड़ेगा, अगर ये लोड ऑफ सेंटर है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस सिमेट्री कंडीशन। इवन इन दैट केस वी विल सी कि हमारा जो इसके अंदर वो बनेगा वो भी इस किस्म का बन जाएगा, और जो सेंटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी दैट डिफ्लेक्शन वुड बी मैक्सिमम, और जिस जगह पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है वहाँ पर ये स्लोप हमारे पास ज़ीरो आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिमेट्रिक कंडीशन। अब आपको पता चल गया कंसेप्चुअली कि वी हैव थ्री कंडीशन, वी कैन मेक यूज़ ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, वी कैन मेक यूज़ ऑफ द कंटिन्यूटी कंडीशन, एंड वी कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ द सिमेट्रिक कंडीशन। इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सोल्यूशन, टाइप ऑफ द problem that you will see in your daily life or in your assessment कि what exactly the problem is, and by looking deep into that particular problem then you will be able to see कि कौन कौन सी कंडीशन आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने से फिर किस तरीके से यू कैन फाइंड आउट दी कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम दैट, ठीक है। सो द बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन एलोन आर ऑलवेज सफिशिएंट। देखिए ये जो मैंने आपको बात बता रहा था कि हो सकता है कि तीनों से आपको मिल रही हो, तो नॉर्मली वो कह रहा है कि जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस हैं, जो बाउंड्री कंडीशन सपोर्ट से मिल रही थी और कंटिन्यूटी कंडीशन जहाँ आपके पास चेंज ऑफ लोडिंग थी, एलोन आर ऑलवेज सफिशिएंट टू डिटरमिन द कांस्टेंट। तो नॉर्मली जो है दीज टू कंडीशन आर मोर देन इनफ फॉर यू टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन C1 and C2, एंड इन सम केसेस यू मे हैव मोर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप जब देखेंगे कुछ हम आगे प्रॉब्लम्स आप करेंगे उसके अंदर आपको चार कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में मिल सकते हैं, एंड ऑल दिस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन जो है वो बाउंड्री कंडीशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो एनी सिमेट्रिक कंडीशन प्रोवाइड एडिशनल इक्वेशंस, जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो एडिशनल इक्वेशन देती हैं। तो ये वो कहने का चाह रहा है कि दो कंडीशन से ही आपको सारी की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आपको मजीद फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो फिर आप उस सिमेट्रिक कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इक्वेशन, ठीक है। वो भी फिर डिपेंडेंट होती हैं दूसरी इक्वेशन पे। द चॉइस ऑफ विच कंडीशन टू यूज इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। तो ये फिर इट डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ फिर आप खुद मुख्तार होंगे। आफ्टर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग इट विल बी इन योर हैंड, आपका कन्वीनियंस है कि आप उसमें से कौन सी कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यू कैन हैव यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ दीज थ्री कंडीशन, सो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सी कंडीशन से कन्वीनियंस के साथ आप अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर डबल इंटीग्रेशन, जब तक ये हमने सारी चीज़ें देख ली कि हमने इक्वेशन डेवलप की, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट मिल रहा है, दूसरा इंटीग्रेट करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट मिलता है, एंड देन वी सॉ कि भाई हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब ये सारा डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने सीख लिया। तो अब अगर हम इसको समरी को देख सकें तो इसके 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कि किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, यू विल हैव टू ड्रा दी स्केच द इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम, ठीक है, बाय योर टेकिंग इनटू अकाउंट योर इंट्यूशन, योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, कि आपको स्केच ड्रा करना होगा कि इलास्टिक कर्व का, ठीक है। एंड देन while drawing that particular sketch of the elastic curve you will have to keep in your mind the boundary condition, कि आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट के ऊपर जो है डिफ्लेक्शन दिखा रहे हो, तो आपके कंसेप्ट अगर बने हुए हैं कि भाई अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के ऊपर मेरे पास डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी, तो उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए जो बाउंड्री कंडीशन की हैं, यू विल हैव टू ड्रा द स्केच ऑफ द इलास्टिक कर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीरो डिस्प्लेसमेंट एट पिन एंड रोलर सपोर्ट एज वेल एज जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो स्लोप एट बिल्ट इन कैंटिलीवर सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको आपने देखना होगा। इस तरीके से आपको स्केच, अगर आपके पास ये बीम आई है तो आप ये स्केच ड्रा कर रहे हैं, आपने पहले भी फिगर को इस्तेमाल किया था, इसमें आपको पता है बाउंड्री कंडीशन से कि डिफ्लेक्शन एट A 0, डिफ्लेक्शन एट B 0, ठीक है। ये कैंटिलीवर का था जिसको भी हमने वहाँ इस्तेमाल किया था अपने लास्ट स्लाइड में। इससे भी हमें पता चल रहा है कि जो सपोर्ट एट A है, ना सिर्फ यहाँ डिफ्लेक्शन ज़ीरो है बल्कि हमारे पास कर्वेचर भी यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। और हमें ये इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो पॉइंट B पर हो रही है, लेकिन वो कितनी है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ इस सेंस में है कि यू नो कंसेप्चुअली यू नो कि यस देयर वुड बी डिफ्लेक्शन, बट हाउ मच दैट डिफ्लेक्शन वुड बी वी डू नॉट नो बिफोर दैट, एंड दैट इज़ द डिफ्लेक्शन दैट वी आर इन फैक्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट।
ठीक है। तो नंबर 2 स्टेप में ये होगा कि आपने इलास्टिक कर्व पहले ड्रा कर लिया, ठीक है, विद द नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, एंड द नेक्स्ट स्टेप यू विल हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ सेक्शन। ये वो मेथड चीज़ है जो ये अज्यूम के मैं कर रहा हूँ कि ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ मेथड ऑफ सेक्शन की मदद से आपने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनानी है एट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x के ऊपर। अगर आपके पास ये जो बीम है, तो अगर आपने यहाँ इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फिर आपको वो मोमेंट इक्वेशन आपको खुद ड्रा करनी होगी। लेट सपोज आपने एक सेक्शन यहाँ ड्रा कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए जो है आप देखेंगे कि x के लिए इस रीजन के अंदर मोमेंट किया है और फिर इस रीजन के लिए मोमेंट किया है। तो डिवाइडिंग दैट बीम इनटू यूजफुल सेगमेंट्स, नॉट रैंडम सेगमेंट। ज़रा आपको पता है कि आप सेगमेंट कैसे लेते हैं। इफ़ यू कैन कैलकुलेट दी, इफ़ यू कैन फाइंड आउट दी, राइट डाउन द मोमेंट इक्वेशन, देन यू नो कि वो सेगमेंट हम कैसे लेते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू राइट डाउन दी मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। कहाँ चले गए? हाँ, तो यहाँ थे हम कि यूज़ द मेथड ऑफ सेक्शंस टू डिटरमिन द बेंडिंग मोमेंट m एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के साथ आप आर्बिट्रेरी डिस्टेंस के ऊपर x के ऊपर आप मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके जो वो मोमेंट इक्वेशन राइटिंग स्किल्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम रिवाइज़ करवा देंगे और आप दोबारा इस काबिल हो जाएंगे कि मोमेंट इक्वेशन खुद लिख सकें, ठीक है। इफ़ द लोडिंग हैज़ डिसकंटिन्यूटीज ए सेपरेट एक्सप्रेशन फॉर m मस्ट बी ऑब्टेन फॉर ईच सेगमेंट। ये वो मैंने बात की ना कि जैसे लास्ट जो मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई थी, जो उसके अंदर पॉइंट लोड लगा हुआ था, वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर लगा हुआ था, तो फिर हर सेगमेंट के लिए आपको मोमेंट इक्वेशन अलग लिखनी पड़ेगी। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपके पास वो जो बीम थी जिसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया था, तो फिर उसके अंदर सिमेट्री थी, उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, तो फिर वन सिंगल इक्वेशन फॉर द होल लेंथ ऑफ द बीम वुड बी सफिशिएंट इन दैट केस, ठीक है। अब आपको जब मोमेंट इक्वेशन मिल गई तो आपको पता है कि जो आपने वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन बताई थी वो EI V डबल डॉट इज इक्वल टू m, ये मोमेंट इक्वेशन बनाई थी। तो m वाज अननोन इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ना। इक्वेशन आपने बनाई, ये यहाँ लिख देता हूँ कि EI V डबल डॉट इज इक्वल टू m। तो दिस m वाज अननोन, सो फ्रॉम दिस स्टेप यू विल फाइंड आउट द मोमेंट m, ठीक है। सो वंस यू हैव फाउंड आउट द मोमेंट m, देन यू विल पुट इट इक्वल टू दिस EIV डबल डॉट एंड देन यू विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। सो देन बाय इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर m ट्वाइस, तो दिस इंटीग्रेशन के जो m है इसको आप ट्वाइस इंटीग्रेट करेंगे, यू विल ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन EIV इन ईच सेगमेंट। तो हर सेगमेंट का आपको मिल जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन फॉर ईच सेगमेंट। सो डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर स्टेप्स के अंदर एक सिंगल इंटीग्रेशन किया तो पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आ गया, जब दूसरा इंटीग्रेट किया तो दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। वो इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन फिर वो जो बाउंड्री कंडीशन की मदद से हम उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी फाइंड आउट करेंगे। एंड देन लास्टली इवेल्युएट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशंस एंड दी कंटिन्यूटी कंडीशंस ऑन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बिटवीन सेगमेंट। जहाँ जहाँ सेगमेंट थे उनके दरमियान में जो भी आपके पास नॉन बाउंड्री कंडीशन है या कंटिन्यूटी कंडीशन है, विद द हेल्प ऑफ दोज कंडीशंस इवेल्युएट द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व मैनी problem and as many problems statically determinate beam as possible. I would suggest inshallah we'll start practicing those problem ourselves as well. inshallah हम अपने लेक्चर के अंदर भी इसको मैं इंक्लूड करूँगा, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल को भी हम करेंगे एंड कुछ अनसॉल्व जो प्रॉब्लम है जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं जो कि मैंने इनिशियली मेंशन की थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एनी बुक देखें, ये ये जो इंजीनियरिंग है ये कोई टेक्स्ट बुक्स रीडिंग नहीं होती, दिस इज़ द कंसेप्चुअल रीडिंग, ठीक है। तो डू नॉट थिंक कि आपने कोई एक सिंगल बुक पढ़नी है और सिंगल बुक को पढ़ करके आप इंजीनियर बन रहे हैं। तो बीइंग इंजीनियर यू शुड बी एबल, या आपके अंदर एक क्यूरोसिटी हो या आपके अंदर इंटरेस्ट हो कि आप मल्टीपल बुक्स को पढ़ें, ताकि आप जितनी ज़्यादा बुक्स को देखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो आई कैन इंश्योर यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा इंशाल्लाह बनेगी, ठीक है। तो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन सिंगल बुक, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन सिंगल टीचर. So I'm not your one single teacher. I would suggest that go and explore further teacher as well, those who have uploaded their lectures on the YouTube. And if you have few engineers around you, your friend, your brother, go and consult them as well. And take जो है वो आप अपना उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें. और जितने ज़्यादा आप लोगों की राय देखेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह, उतनी आपके जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे. सो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन सिंगल बुक.
गो एंड देखें, आपको जहाँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यही तो इल्म की तलाश है जिसके लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से आपको इल्म मिलता है वो आप हासिल करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने अंदर क्यूरोसिटी पैदा करें, ठीक है, क्वेश्चन आस्किंग अपने अंदर पैदा करें, थिंकिंग लाएं, क्रिटिकल थिंकिंग करें। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का पर्टिकुलर मसला है वो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर ख़त्म होती चली जा रही है, और हम जो है वो रट्टाफिकेशन की तरफ चलते चले जा रहे हैं कि भाई टीचर ने सवाल कराया, वो सवाल आपने नोट डाउन किया, उस सवाल का रट्टा लगाया, वही सवाल टीचर ने एग्ज़ाम में पूछ लिया, एंड देन आप वो है बड़े फ़ख्र से अपना सीना ठोक के बाहर निकलेंगे कि भाई मैंने फर्स्ट पोजीशन ले ली, मैंने सेकंड पोजीशन ले ली। तो अगर ये तरतीब रहेगी तो विल नॉट बी एबल टू कम्पीट द वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू कम्पीट द वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू, आप चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम हो, देन स्टार्ट थिंकिंग, ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग एज मच एज पॉसिबल। आप खामोशी से बैठे हो, आप देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि भाई जो मुझे बीम नज़र आ रही है यार, ये बीम किस किस्म की है, इसकी सपोर्ट कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसमें कर्वेचर निकालना चाहूँ तो मैं कर्वेचर को कैसे निकालूंगा। तो क्यूरोसिटी शुड बी इंड्यूस इन योर माइंड, ठीक है। जो क्वेश्चन आस्किंग हैबिट है वो अपने अंदर पैदा करें, बिल्कुल झिझक ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, बिकॉज फिर आप अपने जो जितना भी आपको नॉलेज है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो लर्निंग का मतलब यही है कि आप लोगों से मिलें और वहाँ एक्सप्लोर करें। बाज़ वक़्त आप खामोशी से लर्निंग करते हैं, और अगर वहाँ आपके अंदर कोई क्यूरोसिटी और कोई क्वेश्चन रेज होता है, डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम एनीवन, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली इन द नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा लेक्चर का विल बी सॉल्व प्रॉब्लम, एंड देन इंशाल्लाह जो है मज़ीद कुछ प्रॉब्लम जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट बुक्स में से मैं देखूंगा इंशाल्लाह, जो अच्छे इंटरेस्टिंग सवालात होंगे जिसको सॉल्व करके आपका कंसेप्ट इसमें मज़ीद ज़्यादा अच्छा डेवलप हो सकेगा, मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। और फिर ये जो हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का टॉपिक है वो अपने अख्ताम पहुँचे। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की थी वो हमने बना दी है। अब एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज इंशाल्लाह वो हम करने जाएंगे ऑन आवर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, एंड out of those civil engineering structure our main emphasis would be on statically determinate beam. So thank you very much.